Now we start with addition of vectors. In the previous lecture, we understood what is a vector, what are the different types of vectors, what are the important terms used in vectors, how a vector is represented. All these things we have studied in the previous lecture. Now we are going to understand what is the how we can add the vectors, right? So suppose there are two methods. First is the graphical method. First is a graphical method. In graphical method, how can we add two vectors? Suppose there is a one vector A, there is another vector B, then just put the tail. This is called tail, this is called head. This is called head and this is called tail of first vector. So tail of the second is connected with the head of the first having the same direction, and similarly the tail of first with the head of second, it will give the resultant of these two vectors, and here resultant means the sum of the two vectors. So this is called, since it has three sides of a triangle, so which is known as triangle method of vector addition. Which method? Graphical method. तो ग्राफिकल मेथड में क्या किया, ये वेक्टर ए था आपके पास, ये वेक्टर बी था, कैसे आपने ऐड किया, हमने क्या किया, दिस इज हेड टेल एंड tail of the second is connected with the head of the first. Now there are 2 points are left, tail of the first, head of the second, tail of the first and head of the second, then it will give the resultant of these two vectors. If you have more than two vectors in graphical method, then you have polygon method. In polygon method, suppose you have vector A, you have vector B, you have vector C, and you want to add these three vectors, or suppose one more vector is there, this is D, so apply the same. First draw vector A, right? Then tail of the B with the head of A, vector B. Then tail of C with the head of A, vector C. Then again tail of D with the head of C, this is vector D. What is left? Head of the D and tail of A, then it will be the sum of all these vectors, A vector plus B plus C plus D vectors. So this is the graphical method to represent the vector addition. Suppose you have a body which traveled a distance 3 meters along which direction? East direction. Suppose this direction is east direction, and then 4 meters along north direction. This is in north direction. Then what will be the displacement of the body? Then head of the second with the tail of the first, you connect this is vector R plus vector B, A plus B. This is vector A and this is vector B. So what will be its magnitude? It is 5 meters, and it will be the angle और which will give the direction of this resultant of these two vectors. तो ये तो हो गया ग्राफिकल मेथड, जो ग्राफ से बनाते हैं आप स्केल लेकर के. अगर 3 मीटर है so draw a line of 3 centimeter where 1 centimeter represents 1 meter. Draw a line of 4 centimeter when 1 meter is represented by 1 centimeter on the graph paper. Then note down the length of this side. Then this is the displacement, and then convert it into meter. This will be the resultant displacement of the body. Now we come to analytical method. ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ग्राफिकल मेथड, ये छोटी क्लासेज में कई बार हम यूज कर लेते हैं. अगर हमें एनालिटिकल मेथड लेना हो तो कैसे लेंगे? एनालिटिकल मेथड और कौन सा मेथड ले रहे हैं हम? ये ले रहे हैं हम एनालिटिकल में ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. Vector addition. What is its statement? It states that when two vectors are represented by two sides of a triangle in same order, then third side in opposite order will give the resultant of these. Will give third side in opposite order will give the resultant of these two vectors. Resultant of these two vectors. क्या मतलब हुआ? ट्राइंगल में कितने साइड्स होती है? 3 होती हैं. When two sides are represented by the two vectors, given vectors, जिनको हमें ऐड करना है, but these two sides are represented in the same order,
then third side of the triangle in opposite order will give the resultant of these two vectors. देखिए क्या वो कैसे हम इसको समझेंगे, इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं. Suppose you have a vector A, right, and another vector is, this is vector B, this is vector B. There are two sides of a vector triangle. This is O, this is P, and this is Q. Suppose O, P, Q. And now if you connect these two, this is third side and in opposite order. Third side in opposite order, it will give the resultant of these two vectors, that is vector A plus vector B. Opposite order कैसे हो गया, देखिए सेम ऑर्डर ऐसा है, सेम ऑर्डर है जिसमें मार्कर को पेन को उठाना ना पड़े, आप यहाँ से इधर गए, सेम ऑर्डर होता अगर हम इधर आ जाते, ये वाला कहलाता सेम ऑर्डर. अब यहाँ से इधर गए, अब हमने ये डायरेक्शन दी तो ऑर्डर हमारा क्या हो गया, चेंज हो गया. So this side OQ is in opposite order, this OP and PQ are in the same order. Then this third side will give the resultant of these two vectors. Resultant here means the sum of these two vectors, vector A and vector B. This is analytical method. Why it is analytical method? Mathematically you can find this. यही हमने triangle method लिया था, अभी लिया था graphical method. उसमें तो हम स्केल से मेजर करते थे, ये स्केल से मेजर करो, ये स्केल से करो, ये स्केल से मेजर करो. यहाँ हम स्केल नहीं लेंगे, मैथमेटिकली हम फाइंड करेंगे, कौन से फॉर्मूले बनेंगे. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एनालिटिकल मेथड. अब देखिए कैसे फाइंड करेंगे, हमें रिजल्टेंट आर निकालना है. क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी, नहीं लगेगी, ये राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है. तो इसके लिए क्या करें, इसके लिए यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करें. सपोज दिस पॉइंट इज एम एंड दिस इज दिस एंगल, एंड लेट अस से दिस एंगल इज थीटा. थीटा इज द एंगल मेड बाय वेक्टर बी विद वेक्टर ए. तो हमेशा जो एंगल मेजर करते हैं वो कौन सी डायरेक्शन होती है एंगल की, दिस डायरेक्शन इज द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. हमेशा यही रहते हैं ना, दिस डायरेक्शन इज द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड अपोजिट टू दिस डायरेक्शन इज टेकन एज द नेगेटिव डायरेक्शन. तो यहाँ हमने एंगल थीटा is the angle between vector A and vector B, or we can say vector B makes angle theta with vector A. So from triangle now, let's have this triangle. ये निकाल लेते हैं कुछ चीजें from triangle. Which triangle, QPM or PQM? What about sin theta? Sin theta is perpendicular upon this. What is perpendicular? QM upon PQ. What is QM? What is PQ? This is B. Why B? हम जब डिवाइड करते हैं तो किसको डिवाइड लेते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं, डायरेक्शन नहीं लेते. साइन थीटा है, लेंथ ऑफ दिस साइड अपॉन लेंथ ऑफ दिस साइड. लेंथ मींस कौन सा वाला आएगा, मैग्नीट्यूड आएगा. एंड व्हाट अबाउट QM? सो QM इज इक्वल टू B sin थीटा. Similarly, you can take cos theta. What is cos theta? This is PM upon PQ. That is PM upon B. Or what is PM? PM is equal to B cos theta. Equation number 2. Why we have just taken these two values? हम यहाँ R निकालना चाहते हैं, OQ निकालना चाहते हैं. ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. कौन सी थ्योरम अप्लाई हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी. फ्रॉम ट्राइंगल नाउ, फ्रॉम ट्राइंगल विच ट्राइंगल, OQM. बताइए OQ स्क्वायर कितना हो जाएगा, दैट इज OM स्क्वायर प्लस QM स्क्वायर. व्हाट इज OM? OM इज OP प्लस PM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, QM स्क्वायर. Do solve. What is this is R square. When we are taking R square, I must write like this, modulus square, then it is equal to R square. Remember one thing, you can never write R vector square. Why we cannot write it? Because this is the square of the magnitude only. What is the physical significance of the square of direction? It consists of magnitude as well as direction. तो डायरेक्शन का स्क्वायर पॉसिबल नहीं है. स्क्वायर किसका होता है, मैग्नीट्यूड का. तो जब हमें किसी स्क्वायर लिखना पड़ेगा तो क्या लिखना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और जिसको सिंपली क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर लिख सकते हैं. तो जब हम साइन थीटा लेंगे, कॉस थीटा लेंगे, तो हम मैग्नीट्यूड की रेशो लेंगे. जब स्क्वायर करेंगे तो मैग्नीट्यूड का लेंगे, आर स्क्वायर. बताइए कितना हो जाएगा, व्हाट इज ओपी? ओपी इज इक्वल टू ए, लेट मी राइट वेक्टर और ए ओनली, ए मैग्नीट्यूड प्लस व्हाट इज पीएम? पीएम इज बी कॉस थीटा, b cos theta, that is whole square, plus what is qm? b sin theta whole square. Or r square is equal to a square plus b square cos square theta, 2ab cos theta plus b square sin square theta. Let's combine these two terms, a square b square sin square theta plus cos square theta plus 2ab cos theta. Or this is 1, so what is r? Under root a square plus b square plus 2ab cos theta. 2ab cos theta. अगर हम r स्क्वायर लेते हैं तो ये r स्क्वायर हो जाएगा,
and if we take here under root r, take square side on both the sides, a square plus b square plus 2ab cos theta. So this is the magnitude of resultant of these two vectors. This one is the magnitude of resultant of these two vectors, vector a and vector b. क्या क्या चाहिए इसमें हमें? We need here three things. First, magnitude of vector a, magnitude of vector b, and angle theta made by vector b with vector a. On substituting these three values, we can find the resultant of these two vectors. अब आपको स्केल से मेजर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मैथमेटिकली यहीं से हम फाइंड कर सकते हैं. a की जगह a का मैग्नीट्यूड, b की जगह b का मैग्नीट्यूड, थीटा की वैल्यू पुट करेंगे, क्या निकलेगा r. How to find direction? Direction always taken in terms of tan phi. Suppose it makes angle phi with vector a, resultant makes angle phi with vector a. So from triangle, which triangle? From triangle OQM, tan phi is equal to perpendicular upon base, that is QM upon OM, that is QM upon OP plus PM, or it is written as tan phi is equal to b upon, not b, it is b, qm is b sin theta upon a plus b cos theta. This is a way to find the direction, and there is a way to write this phi. If tan is over here, on this side, opposite side, we can write tan inverse b sin theta upon a plus b cos theta. देखिए एक नई चीज सीख रहे हैं, tan inverse लिखने की. अगर हम कहीं लिखते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स, तो हम इसको लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. अगर कहीं लिखते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू वाई, तो हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई. ऐसे लिख सकते हैं. तो टेन को अगर उधर भेजते हैं तो टेन इनवर्स हो जाता है, जिसको पावर -1 आप पढ़ते थे स्केलर्स में. यहाँ ये वाला बनेगा. सो इट विल गिव अस द डायरेक्शन एंड इट विल गिव अस द मैग्नीट्यूड. ये दो फॉर्मूले बनेंगे, एक मैग्नीट्यूड के लिए और दूसरा डायरेक्शन के लिए. अब देखिए इसमें कुछ स्पेशल केसेस भी लेते हैं. फर्स्ट स्पेशल केस, कौन सा स्पेशल केस हो जाएगा? इफ थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 0 मींस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन. वेक्टर ए और बी दोनों सेम डायरेक्शन में है. थीटा 0 का मतलब क्या हुआ? cos 0 कितना होता है? 1. a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, r कितना हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, cos थीटा कितना हो गया? 1, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी. a प्लस बी होल स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा. a प्लस बी, दिस फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड व्हेन टू वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन. एग्जांपल लेते हैं. इफ ए फोर्स 5 न्यूटन इज अप्लाइड इन अलोंग एक्स एक्सिस, 3 न्यूटन इज अलोंग एक्स एक्सिस, व्हाट इज टोटल फोर्स? 5 प्लस 3, 8 न्यूटन. समझ गए? सेकंड पार्ट, इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, दैट इज इफ vector a and b are opposite to each other, opposite to each other. अगर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं तो cos 180 कितना होता है? -1. अब बताओ r कितना आएगा? a माइनस बी आएगा. कैसे आएगा a माइनस बी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा -1, -1 का हो जाएगा माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर. a माइनस बी का होल स्क्वायर से क्या होगा? a माइनस बी आ जाएगा, राइट. और b माइनस ए लिख सकते हैं, और b माइनस ए, दैट इज ग्रेटर माइनस स्मॉलर. आपने कोई गाड़ी है, उस गाड़ी में पीछे से आगे की तरफ पुश किया 8 न्यूटन से, और आगे से पीछे की तरफ फोर्स लगाया 3 न्यूटन. व्हाट विल बी द रिजल्टेंट? दैट विल बी 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5. थर्ड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट इज वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन cos 90 बताइए कितना होता है? cos 90 इज इक्वल टू 0, देन r इज इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड हियर tan बीटा इज इक्वल टू tan बीटा b sin 90, b sin 90 कितना होता है? 1. सो b अपॉन a प्लस b, cos 90 कितना होता है? 0, दैट इज इक्वल टू b अपॉन a, दैट इज इक्वल टू b अपॉन a. सो दिस इज इक्वेशन नंबर, लेट अस से 5, 6, this is equation number 7, this is equation number 8, and this is equation number 9. These are the special cases, and most of the numericals are solved on the basis of these special cases. कब लगाएंगे स्पेशल केस? when two vectors are in the same direction. कौन से वाला केस लगेगा? ये ऐड कर दीजिए दोनों का मैग्नीट्यूड. in opposite direction, greater minus smaller, perpendicular to each other, under root a square plus b square. direction is given by tan इनवर्स b अपॉन a. इसमें डायरेक्शन क्या होगी? बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, वही हो जाएगी. इसमें कौन सी डायरेक्शन होगी? जो ग्रेटर वाला है. अगर a ग्रेटर देन b है इन द डायरेक्शन ऑफ a, इफ b ग्रेटर देन a, देन r विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ b. आपने ये है, देखिए
8 न्यूटन इधर फोर्स अप्लाई किया, 3 इधर से किया, तो ज्यादा कौन सा 8 वाला है, तो बॉडी किधर जाएगी, इधर जाएगी, तो कौन से वाली डायरेक्शन होगी, इन द अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेटर फोर्स। तो रिजल्टेंट कितना आएगा, 8 minus 3 is equal to 5 in which direction, in the direction of greater force. But if you apply a force in this direction, another force in this direction, the resultant is given by under root a square plus b square, and beta is equal to, I can write tan inverse b upon a. So this is the triangle of the vector addition and these are its special cases. बोलो समझ आया कि नहीं, क्लियर हो गया? Okay. Now there is one more law. This is not triangle, law of parallelogram of vector addition. Law of parallelogram of vector addition और parallelogram law of vector addition. इसी को हम parallelogram से भी कह सकते हैं. Only statement is going to be changed. ये statement change हो जाएगा. अब देखिए statement क्या हो जाएगा. When two sides of a parallelogram is, ये parallelogram बना करके शॉर्ट में हमने लिख दिया parallelogram is represented rather two adjacent sides. अब इसमें adjacent वर्ड लेना पड़ेगा. Two adjacent sides of a parallelogram are represented by two vectors. Or we can write two vectors are represented by the two adjacent sides drawn from the common point. Let me write simply in the simple language. If two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram drawn from the common point, then the diagonal of the parallelogram drawn from the same common point will give the resultant of these two vectors. चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं. कौन सा वाला लॉ पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन. देखिए पहले में ट्राइंगल लॉ था तो ट्राइंगल बना, यहाँ पैरेललोग्राम लॉ है तो क्या बनेगा, पैरेललोग्राम बनेगा. अब पैरेललोग्राम बनेगा तो देखिए क्या बताया हमने, जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम ड्रॉन फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, देन डायगोनल, कितने डायगोनल्स होते हैं, दो. कौन से वाला डायगोनल, व्हिच इज ड्रॉन फ्रॉम द सेम कॉमन पॉइंट विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ दीस टू वेक्टर्स. ये दो वेक्टर्स का क्या बताएगा, रिजल्टेंट बताएगा. क्या मतलब हुआ देखो. अब हम इसी को पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करते हैं. ये वेक्टर एक हम पैरेललोग्राम ये बनाते हैं यहाँ से, और ये वेक्टर कौन सा माना हमने, बी वेक्टर माना. एंड सपोज दिस पॉइंट Q, दिस इज सपोज n पॉइंट, लेट अस से इट इज n. सो इफ टू साइड, दिस इज साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम OP, this is side of a parallelogram is ON, and now I have to complete this parallelogram. अगर ये हमने पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया तो देखिए कौन सा पैरेललोग्राम बना, OPQN. ये क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया कि नहीं. पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके अपोजिट साइड एक दूसरे के क्या होती है, पैरेलल होती है. तो ये देखिए ये साइड और ये साइड दोनों कैसी है, पैरेलल है. ये साइड और ये साइड भी कैसी होगी, पैरेलल होगी, इक्वल भी होगी. अब अगर ये वेक्टर B है तो ये वेक्टर भी क्या आएगा, B आएगा. क्यों, कौन से वाले से, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वल वेक्टर्स. क्यों, दिस साइड इज इक्वल टू दिस वन एंड बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन, सो इफ इट इज वेक्टर B देन इट इज आल्सो वेक्टर B. अब देखो कैसे हमने डिफाइन किया. व्हेन टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम, वेक्टर A वेक्टर B, बताइए दोनों कौन सी साइड है पैरेललोग्राम की, एडजेसेंट है कि नहीं है. कहाँ से स्टार्ट होती हैं, कॉमन पॉइंट से. और जब कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होती हैं तो ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन पॉइंट. अब कितने डायगोनल बनेंगे, एक तो ये बनेगा OQ, दूसरा कौन सा बनेगा, NP. कौन सा वाला डायगोनल, OQ. कहाँ से स्टार्ट होता है, कॉमन पॉइंट से. ड्रॉन फ्रॉम द कॉमन पॉइंट विल गिव द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स. सो दिस OQ इज द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर A एंड वेक्टर B. तो अगर हम ये वाला डायग्राम बना देंगे देन दिस डायग्राम corresponds to law of parallelogram of vector addition. और जब हमने ये वाला हटा दिया था तो नीचे वाला डायग्राम क्या रिप्रेजेंट करता है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन. और डेरिवेशन भी कॉमन है, डेफिनेशन दोनों की डिफरेंट होगी. अब देखिए डेरिवेशन कॉमन है, बस एक लाइन लिखना पड़ेगा, सिंस which side PQ is equal and parallel to which side ON. So
वेक्टर विच वेक्टर PQ इज इक्वल टू वेक्टर ON इज इक्वल टू B वेक्टर। अगर ये साइड और ये साइड दोनों एक दूसरे के इक्वल और पैरेलल हैं, तो अगर ये वेक्टर B है तो ये भी कौन सा हो जाएगा, वेक्टर B हो जाएगा। और अगर ये वेक्टर B हो जाएगा तो आगे का डेरिवेशन बिल्कुल कॉमन हो जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ हम एक्सटेंड करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, मैथमेटिकली पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ये निकालेंगे, रिजल्ट भी यही आएगा, ये रिजल्ट आएगा, ये स्पेशल केसेज आएंगे। तो ये सारे के सारा डेरिवेशन बिल्कुल कॉमन है। तो क्या डिफरेंट है लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और वेक्टर एडिशन में, एक स्टेटमेंट डिफरेंट है और क्या डायग्राम थोड़ा सा डिफरेंट है, एडिशनल है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और देखिए आप एक क्वेश्चन को दो अलग अलग लॉ से सॉल्व करें, अलग अलग मेथड से सॉल्व करें, आंसर तो सेम रहेगा, रिजल्ट सेम रहेगा। तो आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को लें, आप लॉ ऑफ पैरेललोग्राम वेक्टर ऑफ एडिशन को लें, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। तो ये रिजल्टेंट है, ये इसकी डायरेक्शन है, ये स्पेशल केसेज हैं, whether we use the triangle law of vector addition or law of parallelogram of vector addition। तो ये क्या था, ये it is explained on the basis of law of parallelogram of vector addition। तो ट्रायंगल में क्या था, when two vectors are represented by two sides in same order, then third side in opposite order। यहाँ क्या ड्रॉ कर रहे हैं, when two vectors are represented by two adjacent sides of a parallelogram drawn from a common point, then diagonal drawn from the same common point will give the resultant of these two vectors। So ये definition और ये इसका explanation होगा। अब ये हमने पढ़ लिए हैं, हमने इसका ट्रायंगल लॉ सीख लिया है क्या होता है, लॉ पैरेललोग्राम सीख लिया, एनालिटिकल मेथड भी आ गया, एनालिटिकल मींस मैथमेटिकल मेथड, मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे निकाल सकते हैं। अगर कोई एग्जांपल लेना चाहे तो एग्जांपल कैसे लेंगे, हाउ विल वी टेक द एग्जांपल। देखिए एडिशन ऑफ वेक्टर्स का एक एग्जांपल लेते हैं, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, बहुत अच्छा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं, ठीक है, एग्जांपल ले रहे हैं, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स, फ्लाइंग ऑफ बर्ड्स। अब हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं बाय द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। कैसे कर सकते हैं, देखिए बर्ड्स का सपोज दिस इज वन विंग ऑफ द बर्ड, दिस इज अनदर विंग ऑफ द बर्ड, दिस अप्लाई दिस इज फोर्स F1 एंड दिस वन इज फोर्स F2। ऐसा ही होता है कि नहीं, जब बर्ड्स फ्लाई करती हैं तो एक विंग इधर होता है, एक विंग इधर होता है, दोनों विंग से क्या एक्सर्ट करती है, फोर्स एक्सर्ट करती है, एयर को पुश करती हैं, और जब न्यूटन्स लॉ से एक फोर्स लगेगा तो उसकी रिएक्शन भी होगी। तो अगर ये फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसकी रिएक्शन किधर आएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आएगी। सपोज दिस इज R1 एंड दिस इज R2। So R1 is the reaction of force F1, F1 is the force applied by the wing, this is first wing, this is second wing। When this force is applied F1, this force, the reaction will be R1, and of this force F2, reaction will be R2, and this is a parallelogram of R1 and R2। and when you will just draw this diagonal starting from the common point, then R will give the resultant of R1 and R2। and what is the direction of R, in upward direction। so this is wing 1, this is wing 2 of the bird, the force is applied towards downward, this is the force, this is the force applied downward direction, reaction will be reaction of the air of the wing on the wing is in upward direction, ये भी upward, ये भी upward, रिजल्टेंट किधर गया, ऊपर गया। और जब रिजल्टेंट ऊपर जाएगा तो हम कौन से वाला फोर्स कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला फोर्स, कौन से वाला, जो नीचे की तरफ लगा, विंग 2 का नीचे की तरफ लगा, ये फोर्स ऐसे नीचे लगेगा, ये फोर्स ऐसे नीचे लगेगा, एयर का रिएक्शन ऊपर होगा और इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा, ऊपर। तो बर्ड्स स्टार्ट फ्लाइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो देयर इज वेरी गुड एग्जांपल ऑफ व्हेन बर्ड्स फ्लाई द लॉ ऑफ पैरेललोग्राम इज ओबीड। राइट, तो ये एक एग्जांपल हो गया। अच्छा, इसी में हम एग्जाम्पल में ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बर्ड्स डायरेक्शन कैसे चेंज कर सकती हैं, बाय चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस F1 एंड F2। जब इनका मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो R1 R2 का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, और जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो यहाँ डायरेक्शन भी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ डायरेक्शन को भी आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, वही निकालेंगे, tan बीटा ले लीजिए, R से ये एंगल कितना हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, tan बीटा ले लीजिए, क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हम फाइंड कर सकते हैं। सो दिस इज द वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन के हमने कितने लॉ बताए, पहले ग्राफिकल मेथड, फिर हमने एनालिटिकल मेथड, ग्राफिकल में ट्रायंगल मेथड, पॉलीगन मेथड फॉर मोर देन 2 वेक्टर्स, एनालिटिकल मेथड ओनली फॉर 2 वेक्टर्स। बाय हाउ मेनी लॉज, 2 लॉज, ट्रायंगल एंड
Which law? Law of parallelogram. But if you have more than 2 vectors, then what will you do? Analytical method. फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, फिर हम यही लॉ लगाएंगे 2 वेक्टर्स वाला. सपोज यू हैव 3 वेक्टर्स, फर्स्ट टेक द रिजल्टेंट ऑफ एनी 2 एंड देन दिस विल बी 1 वेक्टर, देन टेक द रिजल्टेंट ऑफ दिस एज वेल एज ऑफ दिस. पहले 2 का ले लीजिए, उनका एक रिजल्टेंट आएगा, फिर उसका किसके साथ एडिशन लेंगे? थर्ड के साथ. अगर 4 वेक्टर्स हैं तो 2 का ग्रुप बना लीजिए, पहले 2 का रिजल्टेंट, फिर नेक्स्ट 2 का रिजल्टेंट, फिर इन दोनों का रिजल्टेंट. तो हाउ मेनी टाइम्स वी वुड हैव टू अप्लाई? 3 times. And there is no, just it's not necessary just you will take only first 2 vectors. Out of the 4 you can just make any of these 2 combined. आप फर्स्ट को 4 के साथ मिला लीजिए, सेकंड को ले लीजिए, सेकंड थर्ड को, किसी के साथ भी पहले किसी 2 वेक्टर का रिजल्टेंट, फिर बाकी 2 वेक्टर का रिजल्टेंट, और फिर उसको आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे. तो यही एनालिटिकल मेथड हम अप्लाई करते हैं फॉर द एडिशन ऑफ मोर देन 2 वेक्टर्स. तो समझ आ गया सबको वेक्टर एडिशन क्या होता है? तो ये दिस इज ऑल अबाउट द वेक्टर एडिशन. बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है फिजिक्स में. जब भी आप वेक्टर क्वांटिटी पढ़ेंगे सबसे ज्यादा यही लगेगा. 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट है, ये फॉर्मूला लगेगा, सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, 90 डिग्री पर है, थीटा एंगल पर है, ये सबको लर्न होनी चाहिए, इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए सबको. ठीक है बच्चों. सो दिस इज ऑल अबाउट वेक्टर सम.